So producer's equilibrium. A producer is at equilibrium at that output level when his profits are maximum. The profits of a producer are maximum when marginal cost of the producer is equal to his marginal revenue and marginal cost is rising. Or we can say when number one, marginal revenue is equal to marginal cost, and marginal cost, we can say marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below. And number two, marginal cost is rising. So when these two conditions are satisfied, a producer is getting maximum profits. A producer is getting maximum profits, and he or she is at equilibrium. He or she is at equilibrium. Yes. We can show it with the help of a table and diagram also. Producer's equilibrium from a table and diagram. From a table and diagram. मैं आपको सैंपल एक टेबल दे दूंगा जो आपको ये एक्सप्लेन करेगा where a producer is at equilibrium. ठीक है, कल आपने शिकायत की है हमें ज्यादा समझ नहीं आ गया ये है लेवल ऑफ आउटपुट produced and sold. Level of output sold or produced. When output level is sold, first it is produced, we have marginal cost. When it is sold, yes, we can get marginal revenue. Okay. Also, we know that profit is equal to total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost. मैंने आपको ये भी दिखाया how to calculate total cost from marginal cost and how to calculate total revenue from marginal revenue. When we have total revenue, total cost, we can have profits. Yes, sir. ठीक है? Profit is equal to total revenue minus total cost. ठीक है? Yes, sir. For example, output level, we have one. We have produced one output level. Sir. And we assume that our marginal cost is, for example, 12. Yes, sir. And marginal revenue is 10. ठीक है? Yes, sir. When we produce a second output level, our marginal cost is 10 because marginal cost first decreases. As you know, yes, sir. As you know, yes, sir. This is marginal cost. It first decreases. Marginal cost. It first decreases. ये first decrease होता है, फिर increase होता है due to yes, law of variable proportion or law yes, of returns to scale. पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है. जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो इंक्रीज होता है कॉस्ट, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो कॉस्ट डिक्रीज होते हैं. So at second output level, marginal cost is 10 and marginal revenue remains same for a firm in the perfect competition. मैंने परसों आपको बताया marginal revenue is same for the firm because average revenue is same. At third output level, we still decreases our marginal cost and marginal revenue is same. ठीक है? Yes, sir.
इसका लिखो तो 10 10 10 यस ये 12, 14. 12 10 18 8 12 8 4 it is 6 here, it is 10, it is 10 here, 5 4. 5 marginal 4. marginal cost is 10 नहीं अब हम स्टार्ट करेंगे it is increasing now, Yes, ये अब sir. इंक्रीज होता है, पहले ये डिक्रीज हो गया अब ये फिर इंक्रीज increase. हो जाएगा, पहले डिक्रीज हो गया ना यहाँ जहां मेरी उंगली है Yes, sir. ये पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, ये पहले डिक्रीज होता है फिर अब इंक्रीज फिर होने लगा है, 5 6 ये 10 ही रहेगा, 6 Yes, sir. 6 पे है मार्जिनल कॉस्ट इज 15 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज सेम 10 नीचे Yes, sir. मैंने लिखा है। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए टोटल कॉस्ट फ्रॉम दिस मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, पहले स्टेज पे ये 12 ही रहेगा, इट इज 12, अब ये ऐड कर लो 12 प्लस 10 ये 22 है, बाह Yes, प्लस sir. दा है 22 Yes, sir. प्लस 8 इट इज 30, 30 प्लस 6 it is 36 36 36 plus 10 it is 46 46. Yes, sir. 46 46 plus 15 it is 61, Yes, sir. ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए फ्रॉम मार्जिनल रेवेन्यू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यहाँ 10 आएगा, 10 दागे वो तो दागे 30 प्लस 10 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60, ओके समझ आ गया इतना? Yes, sir. मेवा कोर के हूर तो ये समझ ओ निके हैं No, sir. समझ आवा सॉरी Yes, sir. टोटल कॉस्ट को एस कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट मस, टोटल रेवेन्यू को एस कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू मस। अब मुझे दे दीजिए टोटल प्रॉफिट, अब प्रॉफिट दे दीजिए, हर स्टेज पे प्रॉफिट दे दीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यहाँ क्या है प्रॉफिट 12. No. टोटल रेवेन्यू माइनस 10. टोटल कॉस्ट, Total cost. क्या है टोटल रेवेन्यू क्या है 10, 2. 10. टोटल कॉस्ट का है 12. Minus 2. यस -2 इट इज -2, मैंने चीज एक बनाई है 12 रुपये, Yes, sir. उसकी लागत आ गई 10 रुपए में मैंने बेच दी तो मेरा प्रॉफिट आ गया -2, इसका मतलब है मुझे लॉस है, यहाँ पे Yes, sir. Profit? Loss. नहीं है, इट इज लॉस। यहाँ कितना आ गया 20 माइनस 2. 12. 22. 2. -2 Yes, sir. -2 30 माइनस 30 30 में बनाया 30 में बेच दिया, 0 है प्रॉफिट। Yes, sir. हाँ यहाँ कितना है 40 माइनस 36 इट इज 4, Yes, sir. 50 माइनस 46 इट इज 4, 4. 1. 60 माइनस दिस इट इज 1, 1. ठीक है, सॉरी 60 माइनस 61 इट इज -1, इट इज -1 हियर, लास्ट पे -1 आएगा, 60 माइनस 61 60 में बेच दिया 61 में खरीदा, वो -1 है। हमारा मसला क्या है, हमारा मसला है कि हम देखेंगे हमारा प्रोड्यूसर किस स्टेज पे किस आउटपुट लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करेगा, तो अच्छा मसला सुई। Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे दे दीजिए टोटल प्रॉफिट हर स्टेज पे, टोटल प्रॉफिट एट एवरी स्टेज। जब उसने एक चीज बेच दी तो उसको प्रॉफिट कितना मिला -2, 2. Yes, sir. जब उसने 2 चीज बेच दिए 2 प्रोडक्ट्स बेच दिए तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना बन गया -2 प्लस -2 इट इज -4, Minus 4. Yes, sir. ये 2 चीज यम कना एमस आय 4 रुपये गाट, गोड Yes, अगर sir. अकु चीज यम कया तथ मज ओस एमस 2 रुपये गाट
लॉस 2 का था। अब जब उसने 2 चीज भेजी, एक में भी 2 रुपया घाटा, दूसरे में भी 2 रुपया घाटा, कितना टोटल घाटा कितना हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया, -4। -4। अब 3 चीजें इसने भेज दी, तो ये है -4। इट इज मार्जिनल, समझो आप, ये है मार्जिनल प्रॉफिट एंड इट इज टोटल प्रॉफिट। दिस इज मार्जिनल प्रॉफिट एंड दिस इज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज सम ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट। 2 + 2 Yes, sir. 4, -4 + 2 इट इज -4। अब यहां क्या आ गया, फोर, 4 रुपया घाटा है, 4 रुपया नफा है, 0 आ गया प्रॉफिट। Yes, sir. प्रॉफिट तो 0 आ गया ना। जब उसने 5 चीजें भेज दी, जब उसने 5 चीजें भेज दी, हाँ, 4 चीज ये कन अमिस आव न प्रॉफिट कहें, ये 5th चीज कुन अमिस आय 4 रुपये प्रॉफिट, गो टोटल प्रॉफिट बना अमिस 100 रुपये। 4, yes, sir. हाँ, ये 6th चीज कुन न अमिस पे बे 1 रुपये घाट, गो अम सुन प्रॉफिट रूद 3 रुपये, अम सुन प्रॉफिट रूद। थोड़ा आप दिमाग से काम ले लीजिए, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ये अख चीज छना कना, अख प्रोडक्ट, Yes, sir. अमिस 2 रुपये घाट, कस 0 रुपये. ये 2 चीज कना अमिस 4 रुपये घाट, ये 3th चीज कना अमिस 0 प्रॉफिट तो हम 4 करोस यथ मज गो अमिस आय 4 रुपये टोटल घाट। Yes, sir. ये 4 चीज 4th चीज कुन अमिस आय 4 रुपये घाट, 4 रुपये नफा, सॉरी 4 रुपये आयस नफा। प्रोन घाट तो नयस नफास मज अत रोद 0 प्रॉफिट। प्रोन ऑलरेडी कर्ज घाट माइनस, ये 5th चीज कना 4 रुपये नफा हम 4 तो यथ मज अत क्या रोद 0। वो ये 5th चीज कना 4 रुपये बे गो समे अमिस प्रॉफिट 100 रुपये, टोटल प्रॉफिट वनस 5th चीजस पे 100 रुपये प्रॉफिट। ये 6th चीज कना अमिस बे पे रुपये घाट, गो अम टोटल प्रॉफिट 3 रुपये समान, अमिस 100 रुपये नफा आम, वो पे बे 6th चीजस मज पे बे रुपये घाट, अमिस समान वो 3 रुपये चंदस मज कस क्या समान 3 रुपये चंदस। वनो तुई कह स्टेजस पे अमिस मैक्सिमम प्रॉफिट 1 Sir, 2 4. 3 4 5 पे Sir, 4. Yes, sir. 5th पे इसको Yes, sir. मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। Sir, मैं ये total profit is 4 है. टोटल प्रॉफिट 4 है, मगर Sir, you are on 5th. ये कम लेवल ऑफ Yes, आउटपुट, 5. at 5th output level the producer's maximum. profit is maximum, अत इक्विलिब्रियम पे, अत Yes, sir. इक्विलिब्रियम। तो सोई कंडीशन गया फुलफिल, इस वना कि ये तो मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट आसन बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट अत बराबर आसन 10 and 10। Yes, sir. ठीक छा गया अख कंडीशन। Yes, sir. मगर ये कंडीशन बीकी जाए थी तला कत मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर आसन। अख 5th पे बे कत मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर, इक मार्जिनल रेवेन्यू तो 2th पे, Yes, sir. 2th पे वो तो इक्विलिब्रियम छ यस पे कि यस पे। शाबाश, मुझे बताइए इक्विलिब्रियम इस पे है, सेकंड पे है या Sir, इस पे 5th पे है? 5 पे। क्यों है? Sir, ये माला +4 gain का। अमिस गेन गसा 4, मगर कंडीशन सुन क्या क्या छ, कंडीशन सुन छ अख हसा गस मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट आसन बराबर, बे गस आसन मार्जिनल कॉस्ट गस तम पत राइज गस। Yes, sir. अगर यम जे तला छ मार्जिनल कॉस्ट यम जे फॉल गसा या स्टेज पे मार्जिनल कॉस्ट अस था हो यह इक्विलिब्रियम पॉइंट, मगर ये तो छ दोयम कंडीशन बड़ी कंडीशन सेटिस्फाई गसा मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर आसा, मगर मार्जिनल कॉस्ट राइज गसा के है। After this point marginal cost is not rising at level of output 2, it rises after output 5. Yes, sir. After output 5, so this is the point of equilibrium for the producer, Yes, sir. because both the conditions are satisfied. दोनों एक condition छे अतः satisfied गसा।
Okay, समझ आवा? Yes. So a Yes, sir. Yes, sir. producer equilibrium means when producer is earning maximum profits at a given level of output. The condition for maximizing output is that marginal revenue should be equal to marginal cost, and marginal cost is rising. Rising. Marginal cost Yes, is sir. rising. Rising. बहुत मेहनत से मैंने ये टेबल तैयार किया है इन बुक्स में आकर देखोगे इतना बकवास लिखा हुआ है और इतना Yes, गलत sir. टेबल बनाए हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। Hmm. ये है टेबुलर फॉर्म, दिस इज टेबुलर फॉर्म, ये है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब मैं आपको डायग्रामेटिक सिचुएशन दे दूंगा। नाउ आई विल गिव यू द डायग्रामेटिक सिचुएशन। यही टेबल अगर हम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, अगर ओ एक्स पे अच्छा है वहां Yes, sir. diagram isn't a diagram nice? Yes, but how about level of output sold? Output sold इस पे मैं दिखाऊंगा marginal revenue and marginal cost. Marginal cost करूँ आसान U shaped, it is U shaped. Yes, sir. Marginal cost Parallel. X. वो होते हैं marginal revenue. Marginal revenue curve होती है straight line parallel to x-axis. This is marginal revenue curve. इस पर मैं टेबल्स मंस्ता हो कि दोन जायन छ कट करा marginal revenue तो marginal cost, ये पॉइंट तो ये पॉइंट अख छ सेकंड आउटपुट लेवल एक तक बेच फिफ्थ आउटपुट लेवल, फिफ्थ आउटपुट अगर हम इसको 2 रखेंगे इसको 5 रखेंगे, दिस इज आउटपुट लेवल 2, ये गई आउटपुट लेवल। यत क्या 10 मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल रेवेन्यू थे, ये तो ये मार्जिनल कॉस्ट 10 मार्जिनल रेवेन्यू थे 10 कोरियम अतत काट Yes. ब्याक पॉइंट 5 पे एक ही है वो ये Yes, था sir. पॉइंट लेट इट बी पॉइंट, it is P and this is point Q. ठीक है? Yes, sir. Yes, So sir. we have two equilibrium points, but where profits are maximum. Profits can be maximum only at point Q, because at point Q, beyond point Q, the marginal cost is rising. Here from point P, marginal cost is falling. So go a key point, 2 point. 2. Yes, sir. Output level. At this one on yacht equilibrium, producers equilibrium. Here it is producers equilibrium. It is producers equilibrium. Yes, sir. Producers equilibrium. And profits are maximum. Maximum. Profit is maximum. So this is the producers equilibrium. कल मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है when marginal revenue is equal to marginal cost and producer is getting maximum profits. हमने ये पॉइंट उठाया, यहाँ प्रॉफिट इतना बन गया, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ प्रॉफिट्स इतने ही है, it is profits इतनी है ना, ये हनस प्रॉफिट उसमें लॉस का सर, ये पॉइंट तो तुल में एक ये पॉइंट, Yes, sir. यहाँ प्रॉफिट इतना था माइनस इतना था, ये भी Yes, sir. कम प्रॉफिट दिखाता था. So this can be point beyond 5 Yes, sir. above. So this is how to show the producer's equilibrium from a table and diagram. आप खुद ही कुछ लाइनें लिख सकते हो from the above table and diagram. The producer is at equilibrium and he is earning maximum profits when he is producing and selling fifth level of output. Fifth level of output, because at this output level, the marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is rising. The producer cannot be at equilibrium above or below fifth level of output, because it gives less profits to the producer. It gives less profits to the producer.
ये समझ आ गया? नीचे लिखना इसको, फ्रॉम द अबव टेबल एंड Yes, डायग्राम sir. the producer is at equilibrium when he is producing and selling fifth output level, because at this output level the marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising. He cannot be at equilibrium beyond this output level, above or below this output level, because he is earning less profits. He is not earning maximum profits. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. ये समझ आ गया? Yes, sir. अब हमें देखना है what are the assumptions of this producers equilibrium. Assumptions. अब लिख लीजिए assumptions. कुछ 2-3 assumptions हैं इसके. Assumptions of producers equilibrium. Number first assumption is producer's behavior is rational. Rational. Rational होता है नातिक, जिसका दिमाग ठीक ठीक काम करता है. तो rational producer's behavior does not change easily. That is, his behavior is, he is consistent. That is, he is consistent. Inconsistent नहीं है, consistent है. Number 3, there are only 2 factors of production. Yes. There are only 2 factors of production, that is labor and capital. Yes, sir. Labor and capital, we assume it. Otherwise, there are so many factors of production, but we assume it that there are only 2 factors of production. There are only 2 factors of production. Production. अगर आप बुक देखोगे तो इसमें उसने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू की जो ये फिगर्स दे दिए हैं, यू कैन सी इट, वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट देता ही नहीं है किसी स्टेज पे. अगर किसी स्टेज पे देता है तो लिखता और कुछ, तो टेबल में और कुछ देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है? Yes, sir. अब मैं आपको एक डायग्राम दे दूंगा, उसमें आपको दिखाना है ज्योमेट्रिकली, जिस तरह मैंने कल आपको ज्योमेट्रिकली एरियाज दे दिए उसके, तो आपको दिखाना है वो. ये लिख लिया? Yes, sir. ये हो गया? क्वेश्चन में दे दूंगा. असाइनमेंट है, फाइंड आउट producers equilibrium. Find out producers equilibrium from the following diagram. From the following diagram. Diagram. The following diagram. Bas. Yes, sir.
OX shows level of output or quantity produced and sold. Quantity sold. And OY shows marginal revenue and marginal cost. ये है marginal cost curve. और ये है marginal revenue curve, which is equal to average revenue. ये है price line. This is also price line. ये है marginal revenue, which is equal to marginal cost. ठीक है? Yes, sir. ये है O, Yes, sir. P is price. ठीक है? P is price. हाँ. यहां मैं B लिखूंगा. ये समझो B1. Yes, sir. Output level, for example, OQ0, Q1. यहाँ है Q1. Q1. हाँ, यहाँ मैं Q1. हाँ, यहाँ Q2. ये पॉइंट B, ये A में रखूंगा, ये C रखूंगा, ये पॉइंट D, E रखूंगा, ये F रखूंगा, ये पॉइंट. मैं आपको एक पे प्रॉफिट दे दूंगा. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां दो दिखाते हैं. At two Yes. stages, the marginal cost curve cuts marginal revenue curve. At point B1 and at point B. इन दो पॉइंट्स में से हमारी कंडीशन है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is when producer's equilibrium or profit maximization is when, number one, marginal cost is equal to marginal revenue. That is, marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below. And number second is marginal cost is rising. जब ये below पे कट करेगा तो नेचुरली, अगर मैं OQ पे कल का मैं रिवाइज करूंगा, रिकैप्चुलेट करूंगा, एट आउटपुट लेवल OQ, अगर आउटपुट लेवल है OQ, तो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू क्या आएगा OQ पे? OQBP. समझ आ गया? OQBP. टोटल कॉस्ट कितना है? Total cost is below marginal cost. Yes, Below sir. marginal cost. Below marginal cost. That is OQB1P. OQB1 and P. OQB1 and P. तो प्रॉफिट कितना है? Profit is total revenue minus total cost, which is total revenue क्या है? OQBP. OQBP ये है, ये सारा. तो cost है minus OQB1. हाँ, प्रॉफिट है ये सारा. Yes, sir. ये है प्रॉफिट. Yes, sir. ये कॉस्ट बन गया, तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है. अगर हम ऐसे उठाएंगे B1,
इस तरह मैं उठाऊंगा है? Yes, sir. अगर मैं ये भी B1. उठाऊंगा बी ए सी प्लस ए सी बी, CB. हाँ, Yes, sir. ये दो ट्रायंगल्स में उठाऊंगा, B1 सी ए प्लस Plus सी ए बी, C. सी ए बी, ये है प्रॉफिट। दिस इज द प्रॉफिट, Yes, sir. दिस इज द प्रॉफिट। कल मैंने इसको यहां से ही Yes, sir. आया है, आज मैंने दो जगह ये कट किया तो अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। आपको एट आउटपुट लेवल ओ क्यों 0 पे देना है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू दे दो, टोटल कॉस्ट दे दो और प्रॉफिट दे दो, कितना आएगा। दिस इज नोट ऑफ इंटरोगेशन आपके लिए है। इसी तरह Yes, sir. ओ क्यों 1 पे एट आउटपुट लेवल ओ क्यों 1, इस पे भी मुझे दे दो क्या है, टोटल रेवेन्यू, Total cost. हाँ, क्या है टोटल कॉस्ट और क्या है प्रॉफिट, वो भी आपको देना है। हो गया ओ क्यों मैंने दे दिया आपको, ये दे दिया, ये आपको करना है, यहां पे आपको करना है, और ओ क्यों 2 पे मुझे दे दीजिए एट आउटपुट लेवल, एट आउटपुट लेवल ओ क्यू 2, इस पे मुझे दे दो टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और Total cost. प्रॉफिट। फिर आपको खुद नजर आएगा कि प्रॉफिट कहां पे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा शक्ल कौन सी, किस आउटपुट लेवल पे है Yes, sir. प्रॉफिट की। अगर यहां प्रॉफिट हमें ये सारा एरिया निकल आया, ये भी और ये Yes. भी, अब आप देखिए यहाँ क्या है प्रॉफिट, यहाँ कुछ नहीं है प्रॉफिट, यहाँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट, जितना टोटल कॉस्ट है उतना टोटल रेवेन्यू है। अगर आप ओ क्यू 1 पे, तो यहाँ तो प्रॉफिट क्लियरली ये है, इट इज वेरी विजिबल, Yes, इतना ही है, तो इतना तो लॉस होता है। अगर हम आउटपुट लेवल ये उठाएंगे तो इस ओ क्यू 2 पे प्रॉफिट है ये एरिया, लेकिन इसमें से ये एरिया माइनस करना है, इस एरिया Yes, sir. B. का प्रॉफिट ये एरिया माइनस करना है, BFE या BEF, E. ये कम हो जाएगा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम दैट एट OQ आउटपुट लेवल our profits are maximum when marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is rising. It cannot be, Yes. the producer's equilibrium cannot be at point B where marginal cost and marginal revenue are equal, but marginal cost is falling. Marginal cost is falling. Falling. प्रोड्यूसर को लग रहा है मेरा कॉस्ट फॉल हो रहा है, आई कैन अर्न स्टिल प्रॉफिट्स, यहाँ मेरा प्रॉफिट 0 है, यहाँ मैक्सिमम नहीं है, यहाँ ये मैक्सिमम है। यहाँ उसको लग रहा है कि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, लेकिन अभी मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, आई हैव प्रोविजंस to earn more and more profits. So this is all about the producer's equilibrium. बेसिकली जितना हमने कॉस्ट पढ़ा है, रेवेन्यू पढ़ा है, प्रोडक्शन पढ़ा है, इस सारे का निचोड़ इसी क्वेश्चन में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ all these chapters is to show where a producer can earn maximum profit. इसीलिए मैंने इसको 2 लेक्चर दे दिए हैं। This is crux mind of these all chapters. This is mind of all these chapters. Okay? समझ आ गया? Yes, sir. एग्जाम में बिल्कुल आसान सा है, अगर आप इतना ही लिखोगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन नोट इसको बनेगा एग्जाम के लिए। The producer's equilibrium is a situation when producer is earning maximum profits. The producer earns maximum profits when marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising. From the below Yes. table and diagram we can show producer's equilibrium where producer gets maximum profit. वो table बनाओ और ये diagram बनाओ। From the table and diagram the producer is getting maximum profits at OQ output level. At OQ output level when marginal cost is equal to marginal revenue. हैं? Yes, sir. फिर आप ये भी दिखा सकते हो
at OQ output level, total revenue is this, total cost is this, the profit is this, and at OQ1 output level, total revenue is this, total cost is this, profit is this. So ultimately we can say the profit is maximum at OQ output level when he is earning B1 CA plus CAB profits, which is maximum. Then other output levels from the table at level of output 5, when he is selling 5 output level, he is getting maximum profit of ₹4. Any output level above or below 5th level will fetch him or will give him less profit. So this is all about producer's equilibrium. The question khatam. Yes. Big problem. No, sir. So ये diagram, it is enough diagram. ये है producer's, this point B is producer's equilibrium. Producer's equilibrium. ठीक है? Yes, sir. तो कल हम नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे. इस तरह हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यूनिट खत्म हो गया. तो कल हम उठाएंगे व्हाट? मार्केट. कल हम मार्केट उठाएंगे. ठीक है? Yes, sir. और कोई प्रॉब्लम? मुझे बताओ. No, sir. तो ये घर में कैलकुलेट करना हो, है? Sir. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.